انس میاں ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم پھر وہی بات کہیں گے، علی کا پہلا نمبر بھی ہے، علی کا چوتھا نمبر بھی ہے، پھر آج وہی بات دہرائیں گے، علی کا پہلا نمبر بھی ہے، علی کا چوتھا نمبر بھی ہے، خلافت میں چوتھا نمبر ہے، امامت میں پہلا نمبر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہماری بات مولانا شاہد سعدی صاحب سے ہو رہی ہے؟ جی 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 اور حضرت خیریت سے فرمائیں۔ ہیں؟ جی الحمدللہ بھیا، اللہ کے کرم ہے۔ حضرت ابھی آپ مارے شریف میں ہے نا؟ جی ہاں، ہمارے شریف میں ہوں۔ حضرت ابھی ایک کلپ وائرل ہو رہی ہے نجیب میاں کی، جی جن میں انہوں نے تفضیل کے بارے میں بات کی ہے، آپ کی کیا رائے ہے حضرت؟ ارے بھیا، تو کیوں آپ لوگ ان تمام مسائل میں الجھے ہوئے ہیں یار؟ آج دیکھیے امت کا کیا حال ہے، مسلمان کیسے لوٹ رہے ہیں، اور فلسطین اور غزہ میں کیا قیامت برپا ہے، اور آپ لوگ بھی یار کس طرح کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، اللہ کی پناہ نہ ہمارے بڑوں کو اس کی خبر ہے اور کچھ اس بارے میں فکر کر رہے ہیں، اور آج تھوڑا سا کوئی آ کر کے اس طرح کے معاملے چھیڑ دیتا ہے، شوشہ چھیڑ دیتا ہے، اور سب لوگ جو ہے اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ آج میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، سب اسی میں اپنی انرجی صرف کر رہے ہیں۔ یار یہ وقت ایسا نہیں ان تمام مسائل میں پڑھنے کا نہیں ہے میرے بھائی۔ آپ جو ہے زیادہ کچھ معاملہ وضاحت طلب کرنی ہے تو بہرحال نجیب میاں صاحب قبلہ وہ ہمارے بڑے، ہم ان کے بارے میں کیا رائے کر سکتے ہیں، قائم کر سکتے ہیں، آپ ان سے رابطہ کر لیجئے اور ان سے بات کر لیجئے۔ بہرحال یہ سب مسائل میں مت پڑیے اور کچھ امت کے بارے میں فکر کیجئے میرے بھائی، اپنی قوم کے بارے میں۔ ہمارے ہندوستان میں خود آج مسلمانوں کی کیا حالت ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا ہے، اور یہ سب بیکار کی فضول کی بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت نجیب میاں حضرت بڑے لوگ ہیں، مجھ سے کون بات کرنے جائے؟ ہمارے یہاں حضرت انتشار پھیلا ہوا ہے، لوگ آپس میں اختلاف کیے ہوئے ہیں۔ آپ حضرت کیا ایک جیسے ایمان اور عقائد کا مسئلہ ہے حضرت، آپ کچھ ارے وضاحت اس کر میں دیجیے۔ ایمان عقیدے کا کیا مسئلہ میرے بھائی؟ ایمان عقیدہ کیا، ہمارے صحابہ کرام کو، اہل بیت اطہار کو ماننا اور ان کی فضیلتوں کو اعتراف کرنا، خوبیوں کو تسلیم کرنا کھلے دل سے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ جی ان کو ماننا ہمارا ایمان ہے، ان میں جی ایک کو دوسرے سے بڑھ کر ماننا یہ ایمان کا حصہ نہیں میرے بھائی، جی سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں، صحابہ کرام کو ان کے جو بھی دیکھے، میرے حضور کے قدموں سے جو چیز بھی لگ گئی، حتیٰ کہ ایک نالین پاک بھی لگی تو اس کا ادب، اس کا احترام، یہ ہمارے ایمان عقیدے کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام کے فضائل کا اعتراف کریں، صحابہ کرام کو اپنی آنکھوں، اپنے سروں کا تاج بنائیں، یقیناً یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن ان میں سے ایک کو دوسرے سے بڑھ کر ماننا، کہ جب تک ہم ایک کو دوسرے سے افضل نہیں مانیں گے ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا، یہ سب غلط بات ہے۔ اب دیکھیے میں کیا بتاؤں، خیر اب بہت ہمارے امام اہل سنت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، جی امام عبد البر ہیں، ان کا نام جی ہے، ان کی کتاب ہے الاستذکار، انہوں نے باقاعدہ اس میں اس کو واضح کیا ہے میرے بھیا۔ آپ عالم ہوں گے، آپ شاید اگر آپ کو میں بتا دوں، الاستذکار نام ہے کتاب کا، جی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں باقاعدہ انہوں نے اس کو واضح کیا ہے کہ ان اللہ تعالی لا یسأل عبادہ یوم الحساب من افضل عبادی جی ولا هل فلان افضل من فلان، کی مطلب قیامت کے بارے میں یہ بھی ہے، ولا ذالک مما یسأل عنہ احد فی القبر، ہے نا، جی کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، تفضیل کا مسئلہ ہے یا صحابہ کرام کی فضیلت ایک دوسرے پر فضیلت دینے کا مسئلہ، یہ کوئی جی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ قیامت کے بارے میں، قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، ہے نا۔ جی اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ مطلب ہمارے بندوں میں سب سے افضل کون ہے یہ بتاؤ، یا پھر ایک ان میں سے صحابہ کرام میں سے کون کس سے بڑھ کر ہے، یہ جی سب نہ ہم سے حشر میں پوچھا جائے گا، نہ قبر میں پوچھا جائے گا، جی سمجھ رہے ہیں۔ اور ہمارے مدرسوں میں، آپ اگر عالم ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، اور ہمارے مدرسوں میں، تمام مدرسوں میں درس نظامی میں چلنے والی ایک کتاب ہے عقائد کی، جی تفسیر نصفی، جی جی سوری استغفر اللہ، یہ شرح عقائد نصفی ہے ہیں، جی اور اس کے مصنف علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ، جی انہوں نے باقاعدہ اس کو کوٹ کیا ہے شرح عقائد میں، جی اس بات کو، تفضیل کے مسئلے کو لے کر کے انہوں نے واضح کیا ہے کہ اما نحن فقط وجدنا دلائل الجانبین متعارضہ ولم نجد هذه المسألة مما يتعلق به شيء من الاعمال او يكون التوقف فيه مخلا بشيء من الواجبات فيها،
ये बाकायदा पूरी है कि ये तफजील का मसला कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जी कि जो है जिसके बारे में आमाल का कोई ताल्लुक हो, या जिसमें तवक्कुफ करना यानी कि किसी को किसी पर फजीलत ना देना ये वाजिबात में कुछ मुखिल हो, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। ये जरूरियात दीन का मसला नहीं है, है जी ना। बस ये कि सहाबे किराम और जो अहले बैत अतहार हैं, जो हमारे हुजूर से जिनकी निस्बतें हैं यार, जी वो सब कहते हैं ना किस किस का इंतखाब करें और किस किस का नाम लें। जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है, चाहे मौलाए जी कायनात अली मुर्तजा हो, चाहे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, कोई जी भी हैं, जो जर्रा भी मेरे हुजूर के कदमों से लगा वो आफ्ताब व महताब बन गया। और उन सब की ताजीम, उन सब का उनका अदब करना और उनकी फजीलतों का खुले दिल से एतराफ़ करना, ये हमारे ईमान और अकीदे का हिस्सा है। जी बाकी देखिए हमारे जमहूर उलमा हैं, उन जी सब का ये कहना है कि बहरहाल अबू बकर सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये अफजल हैं, जी सबसे जी अफजल हैं। लेकिन एक जमात है सूफिया की, जी समझ रहे हैं, जी सूफियों में अक्सरियत का कहना यही है, हमेशा से सूफिया का मसलक रहा है जी कि हजरत मौलाए कायनात सबसे अफजल हैं। जी तो ये बहरहाल जिसका हमारे बुजुर्गों का अपना अपना फैसला है, हम सबको तस्लीम करते हैं, सबको मानते हैं। कुछ चीजें हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के अंदर हैं, जो कुछ खुसूसियात हजरत मौलाए कायनात के अंदर नहीं है, कुछ खुसूसियात मौलाए कायनात के अंदर है जो हजरत अबू बकर के अंदर नहीं है। तो हर कोई अपने अपने, और हम औने बौने पौने होकर के यार इन बड़ी बड़ी कदावर शख्सियतों को हम नापने चलेंगे और इनमें नंबरबाजी करेंगे कि कौन एक नंबर पे, कौन दो नंबर पे। ये सब कितनी बेवकूफ़ी है, कैसे मसाइल में हम पड़े हुए हैं यार। जी तो मेरे भाई हम सिर्फ सबका एहतराम करें। आप देखिए जो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम के सहाबा हैं, अहले बैत अत्तहार हैं, और एक सबसे बड़ी खूबी ये जान लीजिए, सुन जी लीजिए जी कि देखें, जो बंदा भी ना मेरे हुजूर के कदमों से लगा, मेरे हुजूर ने उसको ऐसा निखारा, ऐसा संवारा ना कि आप सहाबे किराम की जिस भी सहाबी की कोई फजीलत पढ़िए, उनकी सवाने पढ़िए, बिलखुसूस खुलफाए राशिदीन जो हैं, खुलफाए जी अरबा जो हैं, इनमें से जिसकी भी आप फजीलत पढ़िए और जिनके भी खजाइल फसाइल को आप पढ़ेंगे ना, ऐसा लगेगा कि यार इनसे बढ़कर दुनिया में कोई है ही नहीं। जी ये खास खूबी है। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपने असहाब को, अपने अहले बैत अत्हार को इस तरह निखारा है कि जिसकी भी फजीलत पढ़े ऐसा लगता है कि बस यही सब कुछ है, जी समझ रहे हैं। जी तो यार हकीकत में जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है, महताब है। जी हमें इन तमाम मसाइल में अभी नहीं पढ़ना चाहिए, और हम कोशिश करें कि यार अपने कौम के लिए कुछ करें, मिल्लत के लिए कुछ करें। और ये आए दिन इस तरह के मसाइल में पढ़ना, उलझना और उस पर सारी एनर्जी सर्फ करना और एक जी दूसरे को काफिर गुमराह बताना और जो है सुन्नियत से खारिज करना, ये सब बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मतलब इतनी बड़ी क़यामत बरपा है आजकल पूरी दुनिया में, मुसलमानों के साथ कितनी ज्यादतियां हो रही हैं, जी और अभी भी ये उम्मत नहीं जाग रही है यार, ये लोग नहीं जाग रहे हैं। जी खुदा जाने कब होश आएगा हमें आपको इस मामले में। तो आप देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ जी कि ये सब मसाइल जो भी हैं हमारे उलमा के और हमारे सूफिया के, हमारे बड़ों ने जो फैसला किया, हम दोनों के, चाहे वो उलमा हो या सूफिया हो, उन जी सब के फैसलों का हमें एहतराम है। और हर किसी का अपने नुक्ते नज़र है। उलमा ने हजरत अबू बकर को अफजल कहा, उनका भी हम एहतराम करते हैं। अक्सर सूफिया ने, अब ये आप सैयद नजीम मेरे साहब की बात कर रहे हैं, जी और ये लोग जो अमारा के जो सादात इज़ाम हैं, जी और ये इस तरह जो बिलग्राम शरीफ के जो सादात इज़ाम हैं, ये जी सब जैदी सादात हैं भैया। जी ये सब जैदी, इमाम जैद शहीद के मानने वाले हैं, मतलब की औलाद हैं। जी और खुद इमाम ज़ैद शहीद का अपना मौक़िफ़ जो है, आप देखिए, आप पढ़िए, मुज़क्किरतुल फ़िरक़ है और फ़िरक़ुल इस्लामिया है, इस तरह की सारी किताबें हैं। उनमें आप देखिए कि इमाम ज़ैद शहीद का खुद अपना मौक़िफ़ यही था कि हज़रत मौलाए कायनात सबसे अफजल है। जी और बहुत सारे सहाबा, हज़रत ये क्या नाम है इनका, शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी हैं, जी इन्होंने अपने फतावा अजीजिया में बाकायदा उन्होंने एक जमात की, सहाबे किराम की एक जमात पूरी, उनका नाम, उनका हवाला पेश किया है कि ये जी सब सहाबे किराम थे, उनकी जमात थी कुछ लोगों की, जो जिनमें हजरत सलमान फारसी, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला हैं, अबू सईद जी खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सब बड़े बड़े अजिल्ले सहाबे किराम थे, अबू ज़र ग़िफ़ारी वगैरह।
हजरत ज़ैद बिन अरकम, ये सब बड़े बड़े सहाबा थे जो हजरत मौलाए कायनात को अफजल माना करते थे। लेकिन समझ रहे हजरत हैं? अवाम में तो यही मशहूर है कि कतई है कि हजरत अबू बकर सबसे अफजल है। देखें वही बात है कि अब हम लोग भी तो अपने मिंबर से यही खुतबा पढ़ते हैं ना, अफजल बशर रोजाना हर जुमा को हमारे मिंबरों से भी यही होता है। जब तक जी हम अफजल बशर बादल अंबिया भी तहकीक ना पढ़ लेना हमारा खुतबा मुकम्मल नहीं होता है। ठीक है, ये उलमा का, लेकिन ये कोई कतई कतई बात नहीं है, कोई कतई मसला नहीं है ना, ये जी जन्नी है। और शुरू से सहाबा किराम के दौर से ही इस मामले में इख्तिलाफ रहा है। मैंने बताया ना कि हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमानी बाकायदा पूरा, हजरत इमाम अब्दुल बर मैंने जिनका नाम पहले हवाला दिया है ना, जी इन सब ने इसको लिखा है, कोट किया है इस बात को कि सहाबा जी किराम की एक जमात थी जो हजरत मौलाए कायनात को अफजल माना करती थी। और जी सूफिया, अक्सर सूफिया, ये जो सादात बिलगिराम है, सादात मारेरा, मैंने बताया ना कि इमाम ज़ैद शहीद की औलाद हैं और इमाम ज़ैद शहीद का खुद मौक़िफ़ था। मैं आपको बताऊं मजे की बात, जी सादात बिलगिराम की एक किताब उनके हवाले से छपी है, खुद बिलगिराम से, सुगरवी सादात बिलगिराम के जी नाम से, सुगरवी सादात बिलगिराम, ये जी फारसी में थी और इसका तर्जमा किया है साहिल शहसरामी साहब ने। जी आप उस किताब में देखिए, खुद उस किताब में जो सादात बिलगिराम के हवाले से है, उसमें जब उनके जद्दे आला इमाम ज़ैद शहीद का तारुफ पेश किया गया, मौलाए कायनात का तारुफ पेश किया गया, उसमें बाकायदा ये लिखा है, तर्जमा करने वाले साहिल शहसरामी साहब हैं, उन्होंने भी तर्जमा किया और उसको लिखा है कि ये जो है सादात हजरत मौलाए कायनात को सबसे अफजल मानते हैं, सारे सहाबा में सबसे अफजल मानते हैं। जी तो सैयद नजीब मियाँ साहब हों या सादात मारेरा हों, सादात बिलगिराम हो, कोई भी हो, इनके जद्दे आला का मौक़िफ़ यही रहा। तो अगर आज नजीब मियाँ साहब इस तरह की बात करें तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है ना। और वो उन्होंने, जी नजीब मियाँ साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की है, बहुत मोतदिल उनकी गुफ्तगू है। और भाई ज्यादा मसला है तो आप उनसे खुद राब्ता कर सकते हैं, हम लोग बहरहाल छोटे लोग हैं, बहुत चुन्नू मुन्नू, उनके बारे में क्या बात कर सकते हैं, जी है ना। जी लेकिन मेरे भाई मेरा मशवरा ये है कि यार इस मामले को ज्यादा हवा ना दिया जाए यार। जी और ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि इस मामले में यार आप सारे लोग पड़ जाएं, पीछे पड़ जाएं और माज़अल्लाह इसकी वजह से सादात पर उंगली उठाने लगी और उनको गुमराह और राफजी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला जी बिल्लाह यार। ये जी कितनी मतलब जुर्रत की बात है, कितनी बड़ी जसारत है। और यार उनका हक है, हर कोई अपने जद्दे आला को अगर अफजल ना कहे, हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ कहा भी नहीं है, उन्होंने तो बहुत कहा है कि मतलब कि खिलाफत में अबू बकर, हजरत अबू बकर अफजल है, जी तो जो है इमामत में हजरत हजरत अली अब मतलब अव्वल पे है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा, मुझे पूरी बात याद नहीं है। जी तो इसमें क्या उन्होंने गुनाह कर दिया, क्या गलत जी कह दिया मेरे भाई, समझ रहे हैं। जी तो कहने का मतलब ये है कि ये सब मसाइल में ज्यादा ना पड़ा जाए। और ये हमारे उलमा के दरमियान हमेशा से ये मुख्तलफी मसला रहा है। आप देखिए जी कि ये शरह अकाइद हमारे मदरसों में, तमाम मदरसों में चलती है, जी उसमें बाकायदा ये बात अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी अलैहिर्रहमा ने लिखी है कि ये जी जो तफजील का मसला है, कोई हजरत अबू बकर को अफजल कह रहा है, कोई हजरत अली को अफजल कह रहा है, ये तफजील का मसला, और दोनों तरफ की अपनी अपनी दलीलें हैं भैया, जी दोनों तरफ की दलीलें हैं। और इसलिए हम तो कहते हैं कि हमारे लिए तो हम दोनों को अपने सर का ताज मानते हैं, ठीक जी है। जी और दोनों तरफ दलीलें, वो कह रहे हैं दोनों तरफ की दलीलें मुतारिद एक दूसरे से टकरा रही हैं, है ना। जी लिहाजा हम ये कोई फैसला नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई ये नहीं मान ले, कोई हजरत अली को अफजल कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसके अमल में कुछ फर्क पड़ेगा और ये वाजिबात में कुछ मुखिल होगा, है ना, जी जी ऐसा नहीं है। जी या कोई हजरत अबू बकर को अफजल कह रहा है और हजरत मौलाए कायनात को अफजल नहीं मान रहा है, तो उसका ईमान अकीदा खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जी बताया, एक जी बात समझ लीजिए, जी साहबे किराम को मानना और उनका एहतराम करना, खुले दिल से उनके फजाइल और खसाइस का एतराफ करना, ये जी हमारा ईमान है। जी जी बिल्कुल लेकिन उनमें एक को दूसरे से अफजल मानना, ये ईमान का हिस्सा नहीं है, ठीक है, जी इसका अकीदे से ताल्लुक नहीं है। जी एक जमात है राफजियों की, जी वो गुमराह क्यों है, वो बद्दीन क्यों है, क्योंकि वो सहाबे किराम को गाली देती है, सहाबे किराम को नहीं मानती है। जी और एक जमात है नासबियों की, खारजियों की, वो जी लानती क्यों है और वो जहन्नमी क्यों है, क्योंकि वो अहले बैते अतहार से बुग़्ज़ रखती है। अहले सुन्नत कौन है, ये जन्नती हैं, ये राह हिदायत पर हैं, और जी यही अहले हक हैं। जी ये क्यों अहले हक हैं, क्योंकि ये सहाबे किराम को भी अपने सर का ताज मानते हैं, समझते हैं,
اور اہل بیت اطہار کو بھی اپنی پلکوں پہ بٹھاتے ہیں اور ان کا مطلب احترام کرتے ہیں، ان کے فضائل کا اعتراف کرتے ہیں. جی ہاں تو ٹھیک ہے. یہ ہمیں ہونا چاہیے، اور باقی ان تمام جھمیلوں میں نہ پڑیں. اور جی سب سے محبت، یہ حضور کی محبت. ہاں ایک بات رکھیے کہ اگر آپ کو حضور سے محبت، ہم چاہے صحابہ سے محبت کر رہے ہیں یا اہل بیت سے، جی ان سے محبت اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں حضور سے محبت ہے. حضور کے محبت کی دو شاخ ہیں، ایک شاخ کا نام حب اہل بیت ہے، جی دوسری شاخ کا نام حب اصحاب رسول ہے. ٹھیک جی ہے، جی جی تو ان دونوں شاخوں کو آپ مضبوط کیجئے، دونوں کو پلکوں پہ بٹھائیے اور دونوں کا دل سے احترام کیجئے. باقی مسائل میں بالکل نہیں پڑنا ہے. ٹھیک ہے، جو جی کہہ رہے ہیں آپ، ان کی اپنی دلیل ہوگی، ان کا اپنا نظریہ ہوگا، ہم سب کا احترام کرتے ہیں. باقی ہمارا کام ہے سب کا احترام کرنا. ٹھیک ہے جی بھیا. جی. شکریہ حضرت وضاحت کے لیے. ہاں ٹھیک ہے، انشاءاللہ جزاک پھر بات کریں گے. السلام اللہ، علیکم. انشاءاللہ.